چینی لوک داستان بہادر مولا۔ بہت زمانے کی بات ہے کہ یوئی کو کے عوام نے اپنی گائیوں، بکریوں اور اونٹوں کو ساتھ لے کر لکودک صحرائے گوبی کو پار کیا، ہولناک دلدلوں کو عبور کیا اور گھاس کی تلاش میں وہ دور افتادہ سنکیانگ سے چلتے چلتے صوبہ کانسو میں سلسلہ کو چھی لین کے دامن میں جا آباد ہوئے۔ چھی لین پہاڑ کے دامن میں بہت عمدہ چراگاہیں تھیں، مویشی یہاں خوب گھاس چرتے اور چرواہے بھی خوش تھے۔ لیکن بدقسمتی سے پہاڑ کے نیچے ایک بہت بڑے برفیلے غار میں ایک برفیلا شیطان رہتا تھا۔ وہ اکثر اپنے شیطانی ہتھ کنڈے دکھاتا اور غریب چرواہوں کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا کرتا۔ چنانچہ جب بھی لوگ یہ دیکھتے کہ نیچے برفیلے غار سے سفید دھواں اٹھ رہا ہے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ شیطان پھر اپنے ہتھ کنڈے دکھانے والا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹے کے اندر اندر برف کا ایسا طوفان کھڑا ہوتا جو 10 15 دن جاری رہتا۔ پورا گیاہستان برف کے تودوں سے ڈھک جاتا۔ لوگوں کو جلانے کے لیے لکڑیاں ملتی، نہ مویشیوں کو کھانے کے لیے گھاس۔ میمنے اور بچڑے خوفناک سردی سے ٹھٹر کر مر جاتے۔ لوگوں نے جانے کتنی بار عود جلا کر شیطان کے حضور نذرانے پیش کیے اور کتنی ہی مرتبہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، لیکن اس شیطان پر اس کا رتی بھر بھی اثر نہ ہوتا۔ چرواہوں میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مولا۔ وہ اس شیطان کی کارستانیوں کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ مولا نے دادا سے پوچھا، دادا، شیطان اتنا وحشی اور بے رحم کیوں ہے؟ کیوں نہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ اس کے دادا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹا، وہ بڑی جادوئی طاقت اور جادوئی کمالات کا مالک ہے، اس لیے کوئی بھی اس کو ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کرتا۔ کیا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اس برفیلے شیطان کو زیر کر سکے؟ صرف سورج دیوتا اس کو قابو میں کر سکتا ہے، لیکن سورج دیوتا تو یہاں سے بہت دور مشرقی سمندر میں رہتا ہے۔ اس سے برفیلے شیطان پر قابو پانے کا منتر سیکھنے اور طلسمی چیز مانگنے وہاں کون جا سکتا ہے؟ اپنے دادا کی بات سن کر مولا نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا اور اکڑ کر بولا، اس شیطان کو زیر کرنے کے لیے چاہے مجھے کتنے ہی اونچے پہاڑوں کو عبور کیوں نہ کرنا اور کتنا ہی طویل راستہ کیوں نہ طے کرنا پڑے، میں سورج دیوتا سے منتر سیکھنے اور طلسمی چیز مانگنے ضرور جاؤں گا۔ گیاہستان کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ مولا سورج دیوتا کی تلاش میں نکلنے والا ہے تو وہ اسے الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئے۔ مشرقی چراگاہ کے ایک بوڑھے نے مولا کو ایک نہایت عمدہ گھوڑا دیا جو دن بھر میں 10,000 میل کا فاصلہ طے کر سکتا تھا۔ مغربی چراگاہ کی ایک بڑھیا نے مولا کو ایک جادوئی لباس دیا جو اسے پانی سے بچا سکتا تھا۔ جنوبی پہاڑ سے آنے والے ایک شکاری نے مولا کو چند طلسمی تیر دیے اور شمالی پہاڑ پر رہنے والی ایک چرواہے کی بیٹی نے اسے ایک کوڑا دیا۔ وہاں موجود ہزاروں لوگوں نے خوشی سے فلک شگاف نعرے لگائے اور اس پر رونق فضا میں بہادر مولا جادوئی لباس پہنے، طلسمی تیر لگائے، قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں کوڑا لہراتے ہوئے مشرق کی طرف ہوا کی مانند اڑنے لگا۔ قیمتی گھوڑا مولا کو اپنی پیٹھ پر بٹھائے ہوئے ہزاروں میل دور تک پھیلے ہوئے وسیع گیاہستان کو عبور کر کے، سینکڑوں برفیلے پہاڑوں کو پار کر کے برق رفتاری سے آگے بڑھتا رہا۔ اچانک سامنے ایک عمودی چٹان نظر آنے لگی جو مولا کے راستے میں حائل تھی۔ اس چٹان کا نام تھا چھری کی دھار۔ وہ جڑ سے زمین میں گڑی ہوئی تھی مگر اس کی چوٹی بادلوں میں چلی گئی تھی۔ پسینے میں شرابور قیمتی گھوڑا چٹان کے نیچے ایک طرف سے دوسری طرف تک دوڑتا رہا مگر اس چٹان سے گزرنا آسمان پر چڑھنے سے بھی زیادہ مشکل معلوم ہوتا تھا۔ مولا سخت پریشانی میں پڑ گیا کہ کرے تو کیا کرے۔ اتنے میں اس کے سر پر ایک پرندہ منڈلانے لگا اور گانے لگا، مولا بھائی، قیمتی گھوڑا تو زور لگا کر آسمان تک پہنچ سکتا ہے، تم اپنا کوڑا کیوں نہیں لہراتے؟ اسے لہرا کر تو دیکھو۔ پرندے کی بات سن کر مولا نے ایک بار کوڑا زور سے لہرایا
तो उसे एक जोरदार गर्ज सुनाई दी। कोड़े के आगे वाला सिरा बुलंद हुआ और बादलों में घुस गया, और यूं मौला अपने कोड़े के जोर पर अपने कीमती घोड़े समेत अमूदी चट्टान के उस पार जा पहुंचा। मौला मशरक की तरफ बढ़ता रहा। जाने उसने कितना लंबा सफर तय किया था कि सामने एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई देने लगा। उस जंगल का नाम काला शेर था, क्योंकि उसमें एक काला शेर शैतान रहता था। काले शेर शैतान ने जब एक अजनबी को अपनी तरफ आते देखा तो वो धाड़ कर मौला पर झपटा। कीमती घोड़ा घबरा गया और पलटकर मगरिब की तरफ दौड़ने लगा। काला शैतान शेर उसका पीछा करता रहा और उसे पकड़ने को ही था कि परिंदे का गाना एक बार फिर सुनाई दिया। मौला भाई, काला शेर शैतान तुम जैसे बहादुर को ठेस नहीं पहुंचा सकता। तुम अपना तस्मी तीर क्यों इस्तेमाल नहीं करते? परिंदे के कहने पर अमल करते हुए मौला ने तलस्मी तीर निकालकर काले शेर शैतान पर चलाया। तीर सन से ऐन निशाने पर लगा और शैतान चंगाड़ता हुआ जमीन पर गिरा और गिरते ही मर गया। घोड़े ने पलटा खाया और एक बार फिर मशरक की जानब दौड़ने लगा। हजारों मील की मंजिलें मारते हुए वो मशरकी साहिल पर पहुंच गया। दूर दूर तक फैली हुई सुर्ख रंग की रोशनी में सूरज देवता का महल धुंधला नजर आ रहा था। समुंदर की बेकरां वुसतों में तंदो तेज लहरें ठाठे मार रही थीं। मौला का घोड़ा साहिल पर खड़ा हिनहना रहा था, जैसे वो पूछ रहा हो, अबे यार, अब इस समुंदर को कैसे पार करें। मौला को फिर एक बड़ी फिक्र दामनगीर थी। एक बार फिर परिंदे की आवाज सुनाई दी, मौला भाई, बहादुर आदमी मुश्किलात में कभी हिम्मत नहीं हारता। तुमने पानी से बचाव वाला जादुई लिबास क्यों नहीं पहना? मौला ने फौरन जादुई लिबास पहन लिया और घोड़े पर सवार होकर अपना कोड़ा लहराता और समुंदर की तरफ लपका। देखते ही देखते पानी दो हिस्सों में बट गया और बीच में एक रास्ता बन गया। घोड़ा उस रास्ते पर तीर की तरह दौड़ता हुआ सूरज देवता के महल के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर एक महाफिज देवी बैठी थी जो सूरज देवता की शागिर्द थी। वो सुर्ख और सब्ज कपड़ों में मलबूस थी, जवान भी थी और निहायत खूबसूरत भी। देवी ने जब ये देखा कि दूर से एक अजनबी घोड़े पर सवार लहरों पर दौड़ता हुआ इधर लपका चला आ रहा है, तो वो चिल्ला कर बोली, ए रुको जरा, ये जादू तो देखो। फिर उसने एक तलस्मी शाहीन छोड़ा। ये शाहीन मौला पर हमला आवर हुआ, मगर मौला ने तीर चलाकर उसे पल की पल में हलाक कर दिया और इसी आन में घोड़ा सूरज देवता के दरवाजे पर पहुंच गया। देवी बहुत घबराई। वो दौड़ती हुई एकदम अंदर दाखिल हो गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मौला घोड़े से उतरकर दरवाजे पर दस्तक देने लगा और साथ ही साथ बुलंद आवाज में ये सदा लगाने लगा, सूरज देवता जरा दरवाजा खोलें, ग्याहिस्तान के आवाम बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। उनको बर्फीले शैतान को कत्ल करने का मंत्र चाहिए। वो मसलसल दस्तक देता रहा और चिल्लाता रहा। वो लम्हा भर भी नहीं रुका। इस तरह दस्तक देते देते उसका हाथ सूज गया और उसमें खून रसने लगा। मौला का गला भी सदा लगाते लगाते बैठ गया। दस्तक देते और सदा लगाते 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। तब कहीं जाकर सूरज देवता का दिल पसीजा और उसने देवी से मौला को अंदर बुलाने को कहा। महाफिज देवी ने दरवाजा खोला और मौला को सूरज देवता के सिंहासन के सामने ले आई। सूरज देवता सुर्ख फरगल पहने हुए था और उसके सर पर सोने का ताज था और हाथों में सोने का पंखा। वो सर से लेकर पांव तक जगमग जगमग चमक रहा था। उसे देखकर मौला की आंखें खीरा हो गईं। सूरज देवता अपनी 3 हाथ लंबी दाढ़ी को बल देते हुए मुस्कुराकर मौला से बोला, बहादुर नौजवान, तुम्हारे आने का मकसद मुझे मालूम है। अब मैं तुम्हें एक तलस्मी तुम्बी देता हूँ और उसका मंत्र भी तुम्हें बताता हूँ। तुम बर्फीले शैतान को काबू में करने के बाद ये तुम्बी मुझे वापस लौटा देना, तब मैं तुम्हें अपना शागिर्द बनाऊंगा। ये कहकर सूरज देवता ने अपनी कमर से बंधी हुई एक चमकदार सुर्ख रंग की तुम्बी खोली और मौला को दे दी। फिर महाफिज देवी को हुक्म दिया कि वो मौला को इस तुम्बी का मंत्र सिखा दे। मौला ने सूरज देवता का शुक्रिया अदा किया
और महाफिज देवी के साथ दरवाजे पर वापस आया। वहां उसने देखा कि उसके कीमती घोड़े के सारे बाल सफेद हो गए तो हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उसने इसकी वजह दरियाफ्त की तो महाफिज देवी ने उसे बताया, महल में एक दिन दुनिया में 1 साल के बराबर होता है। तुम महल में 4 दिन ठहरे, इसलिए तुम्हारा घोड़ा बूढ़ा हो गया। ये सुनकर मौला को बहुत अफसोस हुआ। उसने देवी से जल्दी जल्दी मंत्र सिखाने को कहा। ये मंत्र गो लंबा नहीं था मगर याद करने में बड़ा मुश्किल था। जादू करने का मंत्र मौला ने 80 बार रट कर याद कर लिया। उसके बाद महाफिज देवी ने उसे जादू उतारने का मंत्र सिखाना शुरू किया, लेकिन अब मौला का जी उसको याद करने पर नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि उसे अपने गांव वालों से बिछड़े हुए कितने साल हो चुके हैं। पता नहीं इन बरसों में बर्फीले शैतान ने ग्याहिस्तान पर क्या क्या क़यामतें ढाई होंगी, लोगों को कितना नुकसान पहुंचा होगा। वो फौरन वापस जाना चाहता था ताकि घर वापस पहुंचते ही उस शैतान को खत्म कर दे। इसीलिए जब वो जादू उतारने का मंत्र सीख रहा था तो उसे ये मंत्र याद करने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। आखिर 40 मर्तबा रटकर उसने वह मुश्किल मंत्र याद किया, फिर जल्दी जल्दी महाफिज देवी को अलविदा कहकर वापसी का रुख किया। मौला के जाने के बाद गांव के लोग दिन रात इस उम्मीद पर उसका रास्ता देखते रहे कि वो मंत्र लेकर जल्दी वापस लौटेगा और शैतान को मार डालेगा। लेकिन कई साल गुजर गए, मौला वापस नहीं आया। लोग सर दाहें भरते और कहते, हाय बेचारा मौला, शायद अब वो कभी वापस नहीं आएगा। 8वें साल की सर्दियों में मौला वापस पहुंचा। वो मुश्किल कदम उठा सकता था और बहुत थका मांदा था। उसे वापस पैदल ही चलकर आना पड़ा क्योंकि उसका कीमती घोड़ा बहुत बूढ़ा हो गया था और आखिर थकन से चूर होकर उसने रास्ते ही में दम तोड़ दिया था। बहादुर मौला को दुश्वार गुजार रास्ता पैदल ही तय करके घर पहुंचना पड़ा, जिसमें वो अपनी हिम्मत के बलबूते पर कामयाब हो गया। मौला के घर वापस आने के दूसरे ही रोज बर्फीले शैतान ने गार से सफेद सफेद धुआं उगलना शुरू कर दिया, जिससे एक बार फिर निहायत हौलनाक बर्फीला तूफान आ गया। मगर मौला ने फौरन ही जादू का मंत्र फूंका। वो तलस्मी तुम्बी हाथ में लिए तूफान का मुकाबला करते हुए शीलैन पहाड़ के दामन की तरफ चलने लगा। गांव के लोग भी ढोल ताशे और तबल बजाते हुए उसके पीछे हो लिए। कितना बहादुर मौला था। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ पहाड़ के दामन में पहुंचा। वो मुंह ही मुंह में जादू करने का मंत्र पढ़कर बोला, ऊपर चढ़ो। फिर उसने तलस्मी तुम्बी को आसमान की तरफ उछाल दिया। सुर्ख रंग की एक बिजली की लहर सी पैदा हुई और उसके साथ ही तुम्बी आग के गोले की तरह शैतान के गार की तरफ लपकी। चश्मे ज़दन में गार में आग के शोले भड़क उठे। बर्फीला शैतान जो सैकड़ों साल से इंसानों को मुसीबतों में मुब्तला करता रहा था, आग के इन शोलों में जिंदा जलकर मर गया। शैतान जलकर तो मर गया मगर गार में आग के शोले बदस्तूर भड़क रहे थे। मौला ने चाहा कि जादू उतारने का मंत्र पढ़कर तुम्बी को वापस हासिल कर ले, लेकिन वो मंत्र तो वो कब का भुला बैठा था। आग ने 3 दिन और 3 रातें भड़कने के बाद भी बुझने का नाम नहीं लिया। अब मौला को सख्त फिक्र होने लगी। उसे यह डर लग रहा था कि कहीं आग फैलकर जंगल और ग्याहिस्तान को न जला दे और गांव के लोग दोबारा मुसीबतों में मुब्तला न हो जाएं। इसलिए उसने आग के शोलों में कूदकर तलस्मी तुम्बी को बाहर लाने की ठान ली। वो तुम्बी पर झपट पड़ा और उसने आग निकलने के दहाने को बंद कर दिया। आग तो बुझ गई, लेकिन इस दौरान में बहादुर मौला आग में तपकर एक सुर्ख पत्थर में तब्दील हो गया और ग्याहिस्तान में तना हुआ खड़ा रह गया। ये पत्थर का टेला जब से अब तक हमेशा गर्म रहता है। इस पर कोई दरख्त नहीं उगता और ना ही कहीं घास उगती है। ताहम इसके इर्द गिर्द चंद मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में बर्फ पिघलती रहती है। बर्फ पिघलने की वजह से पाई यंग दरिया में पानी का इजाफा हुआ है और चरागाहें ज्यादा सरसब्ज और जरखेज होने लगी। मवेशी बहुत मोटे ताजे और मजबूत होते। मौला की कुर्बानी के बाद से यूइको के आवाम बड़े खुशहाल दिन गुजारने लगे। अब भी जब शिकारी पहाड़ पर जाते हैं या चरवाहे मवेशी चराने जाते हैं
और दूर से सुर्ख पत्थर का टेला देखते हैं तो उनके दिल आज भी तशक्कुर और मोहब्बत के जज्बात से भर आते हैं और वो ग्याहिस्तान के इस बहादुर बेटे को जिसने बर्फीले शैतान को हलाक किया था खराज अकीदत पेश करते हैं। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो ये लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो।